شیربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں: وزیر اعلیٰ کی جیسلمیر میں جی ایس ٹی کونسل کی میٹنگ میں شمولیت، ریاست کا درجہ بحال ہونے کے معاملے پر ہے پر امید۔ پارلیمنٹ میں آج بھی ہنگامہ جاری رہا، اسپیکر نے ایوان کی کارروائی غیر معینہ وقت کے لیے کی معطل۔ کشتواڑ کے جنگلات میں آگ جاری، وادی کشمیر میں بھی آگ کے حادثات میں اضافہ۔ مچھل کی بعض اندرونی سڑکیں بند، 10 روز سے برف ہٹانے کا کام نہیں ہو سکا ہے شروع، ٹینڈرنگ کا ہے انتظار۔ وادی میں سردی کی لہر جاری، شوپیان، اننت ناگ اور پلوامہ میں درجہ حرارت -10 کے آس پاس درج۔ سری نگر میں بھی آج نل اور پیپے منجمد، لوگ پریشان، اور وادی میں بجلی کا بحران جاری۔ ان تمام موضوعات پر ہوگی بات ایک وقفے کے بعد۔ محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے۔ رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ کیا آپ جانتے ہیں HIV संक्रमण کا ایک بڑا کارن ہے انجیکشن کے ذریعے ڈرگز لینا؟ اگر آپ اس لت کے شکار ہیں تو آپ کے لیے OST یعنی اوپیوائڈ سبسٹیٹیوشن تھراپی سینٹرز میں وشیش علاج کی سویدھا ہے۔ OST سینٹرز سے صلاح لے کر آپ جینے کی نئی راہ پا سکتے ہیں۔ یہ سینٹرز سائکیاٹرک ڈیزیزز ہاسپٹل جموں، کمیونٹی سینٹر SMHS سری نگر، GMC بارامولہ، GMC اننت ناگ اور ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر پولیس لائن جموں میں ہے۔ HIV کی ادھک گپت اور مفت جانکاری کے لیے نیشنل ٹول فری نمبر 1097 پر کال کریں۔ ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی JNK ایڈز کنٹرول سوسائٹی۔ زندگی کے مشکل موڑ پر کینسر سوسائٹی آف کشمیر کی کرٹیکل کیئر ایمبولینس سروس ہمیشہ آپ کے لیے دستیاب۔ وادی کے ہر کونے میں ہر ضرورت میں پائیے کرٹیکل کیئر ایمبولینس سروس صرف 25 روپے ہر کلومیٹر پر، سری نگر ایئرپورٹ تک صرف 40 روپے ہر کلومیٹر پر۔ Issued in public interest by Cancer Society of Kashmir, Srinagar. Call 6006095505۔ بینکنگ سے جڑی ہو کوئی بھی سیوا اب ملے گی ہاتھوں ہاتھ خدمت سینٹرز کی سہایتا، ہمیشہ جو کھڑی ہے آپ کے ساتھ۔ بینکنگ سے جڑی 40 سے زیادہ سیواؤں کے ساتھ بینک کے آتھورائزڈ ریپریزنٹیٹیو خدمت سینٹرز، جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے وہاں ہم پہنچائیں گے، کیونکہ جانکاری ہی سمجھداری ہے۔ CSR انیشیٹو آف JNK بینک، آپ کا اپنا بینک۔ دیدی کیسے ہیں آپ؟ اور اپنی گڑیا تو کالج جانے لگی ہے، کیا آپ نے اس کا نام پنچایت الیکٹورل رول میں درج کیا ہے؟ نہیں، وہ تو نہیں کیا، اور پنچایت رول میں درج میرے نام میں بھی غلطی ہے۔ ارے آپ چنتا بالکل نہ کریں، اگر گڑیا کی عمر 18 سال ہو چکی ہے یا 1 جنوری 2025 سے پہلے یا تب تک ہو جائے گی تو گڑیا کا نام ووٹر لسٹ میں رجسٹر آرام سے ہو جائے گا۔ ساتھ ہی پنچایت الیکٹورل رول میں درج نام یا انیہ جانکاری میں کوئی بدلاؤ کروانا ہو یا اپنے ووٹ کو دوسرے حلقے میں شفٹ کروانا ہو یا ڈیلیٹ کروانا ہو وہ بھی ہو جائے گا۔ مگر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے اپنے پنچایت حلقہ کے گرام سیوک الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر کے پاس نشلک فارمز اویلیبل ہیں، یا آپ اسٹیٹ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ secjk.nic.in سے بھی یہ فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، فارم بھرنے کی آخری تاریخ 20 دسمبر 2024 ہے۔ اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے ہر پنچایت میں سبھی بوتھ لوکیشن پر اسپیشل کیمپس کا آیوجن کیا ہے، جن کی تاریخ ہے 14 اور 15 دسمبر 2024، جس میں پنچایت الیکشن بوتھ کے سبھی کرمچاری جیسے کہ VLW، MPW، GRS اور ان کے ساتھ ساتھ اسمبلی BLO بھی بوتھ لوکیشن پر ووٹرز کی سہایتا کے لیے موجود رہیں گے۔ زیادہ جانکاری کے لیے اسٹیٹ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ secjk.nic.in پر وزٹ کریں۔ ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی اسٹیٹ الیکشن کمیشن JNK۔ شیربین پانگڈی ریڈیو سری نگر سے میڈیم ویو 268.81 میٹر FM 2 103.5 MHz کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔
समीन लोकसभा के स्पीकर ने आज ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना वक्त के लिए मुअत्तल कर दी। आज सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही अपोजिशन मेंबरान ने गुज़श्ता दिनों के वाक़यात को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच स्पीकर ने वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल से अपनी वजारत से मुतल्लिक बिल मुश्तरका कमेटी को सौंपे जाने वाले दस्तावेजात ऐवान में पेश करने को कहा, जिस दौरान अपोजिशन मेंबरान ने मजीद शोर शराबा किया। स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन मेंबरान से ऐवान का वक़ार बरकरार रखने की अपील की और साथ ही ये अज़्म दोहराया कि पार्लियामेंट अहाते में किसी तरह के एहतजाज या मुजाहरा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अगर उनकी बात को संजीदगी से नहीं लिया गया तो उनको कार्रवाई करना पड़ेगी। मेंबरान की तरफ से शोर शराबा जारी रहने के बाद ही स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना वक्त के लिए मुलतवी कर दी। इधर राज्यसभा में आज शोर शराबे के बीच चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मेंबरान से अवाम के एतमाद और तवक्कात का एहतराम करने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस मेंबरान के शोर शराबे के बीच कहा कि दुनिया हमारी जमहूरियत को देखती है, फिर भी हम अपने तर्ज अमल से अपने शहरियों को मायूस कर रहे हैं। शोर शराबा जारी रहने के साथ ही चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। इधर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज राजस्थान के जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने टूरिज्म समिट 2024 में शमूलियत की। इस समिट में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने भी शमूलियत की। आज ही जैसलमेर राजस्थान में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी मुनक्कद हुई, जबकि बजट से मुतल्लिकीन से बातचीत का अमल शुरू हुआ। उमर अब्दुल्ला ने जैसलमेर में ज़रा अबलाग से बात करते हुए कहा कि उन्हें जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के साथ साथ वजीर खजाना से बात करने का मौका मिल रहा है और वो इस मीटिंग से काफी पुरुमीद है। ना बड़ी अच्छी बात है। जैसलमेर में जीएसटी की काउंसिल और उसके साथ साथ प्री बजट जो कंसल्टेशन की गई है, इससे हम जैसे लोगों को एक मौका मिला। पहली मर्तबा जोधपुर आया हूँ, अब तो राजस्थान का ये हिस्सा भी देखने का मुझे इसी बहाने मौका मिला। उम्मीद करता हूँ कि फिर कभी छुट्टी के लिए भी यहाँ आ पाऊंगा, लेकिन चलिए आज काम के बहाने यहाँ आ गए। लोकतंत्र के इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन पे जो वोटिंग हुई है, क्या कुछ अभी तो वोटिंग हुई नहीं ना, अभी तो सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है, अभी तो उस पर बहस होना बाकी है और पार्लियामेंट के साथ साथ कई रियासतों में भी तो पास करना होगा। आगे बातचीत चलने दीजिए, देखते हैं कहां तक पहुंच जाते। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने गुज़श्ता शाम वजीर दाखिला अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की, जिस दौरान जम्मू कश्मीर के हवाले से अहम मामलात पर बातचीत की गई। मीटिंग में जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने पर भी बात हुई। मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला ने मीडिया को बताया कि उन्होंने वजीर दाखिला के साथ अहम मौज़ूआत पर बात की और उन्हें उम्मीद है कि रियासत का दर्जा बहाल कराने का वादा जल्द पूरा किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के सूरत हाल के मुतालिक, जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बने उसके मुतालिक और जो पिछले 2 महीने से थोड़ा ज्यादा अरसा हुआ है चुनी हुई सरकार को, जो हमारा तजुर्बा रहा है वहाँ काम करने का, जो बीच बीच में अगर कहीं मुश्किलातें आईं या कुछ ठीक रहा, उसको लेके होम मिनिस्टर साहब से बात हुई और एक अच्छे माहौल में बात हुई। उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह काम करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका फायदा होगा। बिजनेस रूल्स जो है उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना देना नहीं है। बिजनेस रूल्स जम्मू कश्मीर की चुनी हुई हुकूमत को तय करना है, कैबिनेट ने अप्रूव करना है और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजना है। कैबिनेट सब कमेटी उसको फाइनलाइज करेगी, कैबिनेट उसको मंजूरी देगी और फिर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेज देंगे। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल बनता नहीं है। बात हुई है स्टेटहुड को लेके और उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलेगा। वजीर आला नई दिल्ली के बाद राजस्थान में सरगर्म। शर्बीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामिर वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच दर्ज हरारत में काफी गिरावट दर्ज हुई है और बाज़ इलाकों में दौरान शब दर्ज हरारत -9 डिग्री तक चला गया है। रिवायती तौर वादी कश्मीर में सरमा के दौरान सबसे ज्यादा मनफी दर्ज हरारत गुलमर्ग और पहलगाम में दर्ज होता था, मगर अब की बार जनूबी कश्मीर के बाज़ इलाकों ने मनफी दर्ज हरारत में इनको पीछे छोड़ दिया है। शोपियान में गुज़श्ता शब दर्ज हरारत -10 डिग्री, अनंतनाग में -9.9, पुलवामा में -9.5, जबकि पहलगाम में -8.2 और गुलमर्ग में -6 डिग्री ही दर्ज हुआ। सोनमर्ग में -9 डिग्री, जबकि शहर श्रीनगर में -6.2 डिग्री दर्ज हरारत चले जाने से शहर में आज सुबह घरों के नलके और पानी की पाइपें मुंजमद पाई गईं और इस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना रहा। लोग घंटों तक यकबस्ता
नलों के पिघलने का इंतजार करते रहे। आज सुबह सर्दी का जोर इस कदर जारी रहा कि सुबह 10 बजे के करीब भी दर्जा हरारत -2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जिससे गाड़ियां स्टार्ट करने में भी दिक्कतों का सामना रहा। इधर मनफी दर्जा हरारत के बीच वादी में बिजली की सप्लाई पोजीशन जो कि तो है और बिजली को लेकर आम लोगों में काफी नाराजगी पाई जा रही है। स्मार्ट मीटर वाले इलाकों में भी शेड्यूल पर अमल दरामद नहीं हो रहा है और बाज इलाकों में तो सार्फिन को अब बिजली के आने जाने के औकात ही मालूम नहीं। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से अगरचे यकीन दिलाया गया था कि महकमा बिजली को मजीद बिजली खरीदने के लिए इजाफी रुकूमात मंजूर की गई हैं, लेकिन क्या इजाफी बिजली खरीदी जा रही है और अगर हाँ तो फिर सप्लाई में बेहतरी क्यों रूनुमा नहीं हो रही है? ये वो सवाल है जिसका जवाब सार्फिन तलाश कर रहे हैं। इधर गांव देहात और कस्बे जात में तो बिजली सप्लाई का निजाम इस कदर बिगड़ा हुआ है कि लोग अब सड़कों पर आकर इसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे हैं। बाज़ इलाकों में तो सार्फिन यहाँ तक शिकायत करते देखे जा रहे हैं कि उन्हें अपने मोबाइल, लैपटॉप और रोशनी के आलात चार्ज करने में परेशानी हो रही है। यहाँ हर 2 घंटे बाद 15-20 मिनट के लिए बिजली आ जाती है और फिर अगले 2 घंटे के लिए गायब हो जाती है। जिला बड़गाम के दूर दराज इलाकों के सार्फिन का कहना है कि कभी कभी 2 दिन तक उन्हें बिजली के दर्शन नहीं हो पाते हैं। एक रिपोर्ट यूनुस परे से। सर्दी की शिद्दत के बावजूद वादी के बाकी जिलों की तरह वस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले में भी बिजली की आंख मचोली से हाहाकार मची हुई है, जिससे लोगों में महकमा बिजली के खिलाफ शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक जिले के कई मुतअद्दिद इलाकों से शहरबीन को आए रोज ये इतलात मौसूल हुई है कि इन दिनों बिजली की अदम दस्तियाबी की वजह से जहाँ आम लोगों को मुश्किलात का सामना है, वही मुख्तलिफ इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे तलबा और तालिबात को भी बिजली की आंख मचोली की वजह से जबरदस्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीरवा इलाके के आरी पाथन के लोगों ने शहरबीन को बताया कि गाँव वालों के साथ रिसीविंग स्टेशन तामीर करते वक्त महकमा पीडीडी के हुकाम ने वादा किया था कि गाँव के लिए एक अलग फीडर दिया जाएगा। बकौल लोगों का इल्जाम है कि अलग फीडर फराम करने के बजाय कई दूसरे गाँव को मौजूदा फीडर में शामिल कर दिया गया, जिसके नतीजे में आरी पाथन में बिजली की कमी, कम वोल्टेज और कटौती के मसाइल पैदा हो गए। काबिल जिक्र है कि आरी पाथन का आधा हिस्सा बीरवा के साथ जोड़ दिया गया, जिस पर गाँव के लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए हुकाम से फौरी तौर पर मौसर इकदाम उठाने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ जिले में बिजली के अफसर सूरत हाल ने एक संगीन रुख इख्तियार किया है और दूसरी तरफ बिजली फीस में इजाफा होने के साथ ही मकामी लोगों का कोई पुरसानी हाल नहीं और बिजली का शेड्यूल भी नहीं है, क्योंकि शहरबीन को बार बार पिछले 1 हफ्ते से लगातार ये शिकायत मौसूल हुई है कि कई इलाकों में 1 घंटे के बाद अगले 3 घंटों तक, जबकि कई इलाकों में 20 मिनट के बाद अगले 2 घंटों तक बिजली बंद रखी जाती है, जिसके नतीजे में सार्फिन बिजली सप्लाई की बार बार अदम दस्तियाबी से तंग आ चुके हैं। वही तस्वीर के दूसरे पहलू की तरफ देखा जाए कि गुज़िश्ता कई माह में अगरचे लोगों की जानिब से धरनों और एहतिजाजी मुजाहरों के बावजूद भी महकमा के अफसरान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और आए रोज जिले के लोगों में दुश्वारियों का इजाफा होता जा रहा है। फराज शरीफ इलाके के हयातपुरा, पकरपुरा, बजगू, नीलनाग, खाग इलाके के लुकीपुरा, गोंड दालवाश, अलापुरा, पालपुरा, हजरपुरा, त्रापाई, सरश और आवनपुरा खाग, बीरवा इलाके के डगर, मीरपुरा, वनगाम, औरवा, तकपुरा, इसगंदरपुरा, आरिजाल इलाके के नंदपुरा, जमपुरा और रखीवासू, खान साहब इलाके के बसंतवुडर, बटपुरा, हारवानी, करालपथरी और चादुरा इलाके के गंजबाग, बागी बिश्नू, जबकि वतरवनी इलाके के बुखारी काली, पैरसाबाद, डडिना, बनहमा और शूलीपुरा और जिले के दीगर मुतअद्दिद इलाके शामिल है। बिजली की नाकस सूरत हाल से लोगों में सख्त गम गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों के मुताबिक एक तरफ कारोबारी इदारे बिजली की अदम दस्तियाबी की वजह से पहले ही मुतासर हुए हैं और अब इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ बच्चों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर मागाम, सुनूर कलीपुरा, वतरड़, बीकेपुरा, नारबल और वडवन से वाबस्ता रिसीविंग स्टेशन के तहत मुतअद्दिद गाँव देहात में भी बिजली की बार बार कटौती अब रोज का मामूल बन गया और बिजली की अबतर सूरत हाल की वजह से मज़कूरा इलाका जात शाम के बाद गुप्त अंधेरे में डूब जाते हैं। लोगों ने इस हवाले से मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि वो इस मामले की तरफ तवज्जो दे और मज़कूरा इलाका जात को माकूल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए। ये थे बड़गाम से यूनुस परे। सामिर वादी में जहां एक तरफ खुशहाली और ठंड से लोग पीने के पानी की कमी के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, वहीं पूरी वादी में आए रोज आग के हादसात भी रोनुमा हो रहे हैं। वादी के कई जंगली इलाकों में भी आग ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया, जबकि सैकड़ों घर, तिजारती मराकज, दुकानें, सरकारी और गैर सरकारी दफातर और बाज मसाजिद भी आग के अलग अलग हादसात में खाकस्तर हुई हैं। माहिरीन का मानना है कि एक तरफ जहां
خشک سالی ان حادثات میں اضافہ کر رہی ہے، وہیں دوسری طرف ٹھنڈ کے باعث لوگ گرمی کے آلات کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں، جس سے حادثات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک رپورٹ سعید یاسر سے ہے۔ کشمیر وادی میں پچھلے کچھ مہینوں سے چلی آ رہی خشک سالی اور ان دنوں سردی میں اضافے کے ساتھ ساتھ آگ لگنے کے واقعات لگاتار جاری ہیں۔ کل شام دیر گئے راج باغ سری نگر میں سلک فیکٹری کے نزدیک آگ کی ایک بھیانک واردات میں ایک عمارت پوری طرح سے خاکستر ہوئی۔ البتہ فائر اینڈ ایمرجنسی محکمے کی زبردست کارروائی کے سبب آگ کو سلک فیکٹری اور رہائشی مکانوں کی طرف پھیلنے سے روکا گیا۔ اس واردات میں لاکھوں روپے مالیت کی چیزیں خاکستر ہوئی۔ پولیس نے معاملے کی نسبت سے رپورٹ درج کر کے تحقیقات شروع کی ہے۔ سرکاری اعداد شمار کے مطابق اس برس سری نگر ضلع میں 590 کے قریب آگ کی وارداتیں رونما ہوئی، جن میں 230 کے قریب رہائشی مکانات، 20 کے قریب ہوٹل اور 150 کے قریب دکانیں خاکستر ہوئی۔ ادھر وادی کے دوسرے اضلاع میں بھی آئے دن آگ لگنے کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ سرکاری اعداد شمار کے مطابق اس سال وادی میں 6031 کے قریب آگ کی وارداتیں رونما ہوئی، جن میں مالی نقصان کے علاوہ کروڑوں روپے کی چیزیں خاکستر ہوئی۔ وادی میں پچھلے سال 2310 کے قریب آگ کی وارداتیں رونما ہوئی تھی۔ فائر اینڈ ایمرجنسی محکمے کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ موجودہ خشک سالی اور عام لوگوں کی طرف سے سردی میں احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے کو بنیادی وجہ ٹھہراتے ہیں، کیونکہ سردی کے ایام میں اگرچہ گرمی کے آلات کا استعمال ضروری ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، مگر لوگوں کی غفلت شعاری کے نتیجے میں بیشتر آگ کی وارداتیں رونما ہو رہی ہیں۔ خشک سالی کے نتیجے میں آگ کی وارداتیں رہائشی علاقوں تک ہی محدود نہیں رہی ہیں، بلکہ جنگلی علاقوں میں بھی آئے دن آگ کی وارداتیں رونما ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں دیودار اور دوسرے درختوں کے ساتھ ساتھ جڑی بوٹیوں کی پیڑوں کو بھی کافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ آپ نے سعید یاسر کی رپورٹ سنی۔ سمین گرکوٹ اوڈی کے نامور سماجی کارکن اور سابق ممبر پارلیمنٹ محمد شفیع اوڈی کے برادر نسبتی اور ایم ایل اے اوڈی ڈاکٹر سجاد شفیع کے ماما خواجہ غلام رسول جو مختصر علالت کے بعد سری نگر میں انتقال کر گئے۔ مرحوم کے جسد خاکی کو آج صبح آبائی گاؤں گرکوٹ اوڈی پہنچایا گیا، جہاں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر اور وزیر اعلیٰ مرعو عبداللہ نے خواجہ غلام رسول جو کے انتقال پر صدمے کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے حق میں دعائے مغفرت کی ہے اور سگواران کے ساتھ تعزیت کی ہے۔ اس دوران نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر، ڈاکٹر مصطفیٰ کمال، عبدالرحیم راتر، وزیر اعلیٰ کے صلاحکار ناصر اسلم وانی، نائب وزیر اعلیٰ چودھری سریندر سنگھ، جموں کشمیر کی وزیر سکینہ تو، جاوید احمد ڈار، ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف احمد، آغا سعید روح اللہ، جاوید رانا، ایڈوکیٹ شوکت احمد میر، قیصر جمشید لون، ڈاکٹر بشیر ویرے، الطاف احمد کلو، شمیمہ فردوس، میر سیف اللہ سمیت پارٹی کے متعدد ممبران اسمبلی، سابق ممبران اسمبلی اور لیڈران نے خواجہ غلام رسول کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سگواران کے ساتھ تعزیت کی ہے۔ واضح ہے کہ خواجہ غلام سلجو شہربین میں ہمارے ساتھی اور ایڈیٹر مقصود احمد کے نزدیکی رشتہ دار بھی ہیں۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ہریانہ کے سابق وزیر اعلیٰ اوم پرکاش چوٹالہ کے انتقال پر رنج کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین کے ساتھ تعزیت کی ہے۔ شہربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز، جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ بس نام ہی کافی ہے، مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا، 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 اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا۔ خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو آپ کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ شہربین میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم۔ سامعین، محکمہ جنگلات میں رہبر جنگلات کے طور کام کر رہے
डोडा के विशाल शर्मा हरकत कलब बंद होने से इंतकाल कर गए। इस हवाले से रहबरी जंगलात मुलाजमीन ने एक ताज़ती इजलास मुनक्कद किया और इस दौरान इल्ज़ाम लगाया गया कि विशाल शर्मा नौकरी मुस्तकिल होने में हो रही गैर ज़रूरी ताख़ीर के बायस ज़हनी तौर मुंतशिर थे और काफ़ी दबाव महसूस कर रहे थे, क्योंकि 7 साल से वो सिर्फ 5,000 की उजरत पर काम कर रहे थे और इससे उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था और वो रहबरी जंगलात पॉलिसी की अमल आवरी में हो रही ताख़ीर से काफ़ी बददिल थे। रहबरी जंगलात मुलाजमीन ने जम्मू कश्मीर सरकार से अपील की है कि आन जहानी के घर के एक फ़र्द को मुस्तकिल नौकरी दी जाए और साथ ही रहबरी जंगलात मुलाजमीन की नौकरी को पॉलिसी के ऐन मुताबिक मुस्तकिल किया जाए। मुश्ताक देव ने डोडा से खबर दी है कि त्रोंगी दक्षिण के जंगलात में आग नमूदार होने से दर्जनों दरख्तों और झाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और आग काफी इलाके में फैली हुई है। जंगलात में दरख्त जलकर गिराने से पानी की कई पाइपलाइनें भी तबाह हुई हैं, जिससे मुतल्लिका इलाकों में सप्लाई मुतासिर है। इधर पाडर, छात्रू, सुरूड, कोंतवाड़ा के जंगलात में भी कई रोज से आग लगी हुई है और इस बायस जंगली हयात के साथ साथ पेड़ पौधे खतरे में पड़े हैं। इधर पामपोर में भी आबी पनागाहों में गुज़श्ता शाम आग नमूदार हुई और कई किलोमीटर तक फैली घास जलकर खाक हुई। तफसीलात शबीर भट्ट से। वादी कश्मीर में लंबे वक्त से बारिशें न होने की वजह से आगजनी के वाकयात में होशरुबा इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वहीं जनूबी जिला पुलवामा में भी रवा हफ्ते में कई सरकारी दफातर के साथ साथ जंगलात में आग लगने के वाकयात से अवामी हलकों में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। गुज़श्ता शाम ज़फ़रान के लिए मशहूर तवारीखी कस्बा पामपोर के दिलकश वेटलैंड छतलम के किनारों पर मौजूद घास में आग लगी, जिसने फौरी तौर पर एक वसी अराजी को अपने कब्जे में ले लिया। सूरज हाल की खबर मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, महकमे वाइल्ड लाइफ, पुलिस और मकामी रजाकारों की जानिब से इस भयानक आग को कई घंटों की मेहनत शाखा के बाद कंट्रोल किया गया। मुकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि आग के इशाले करीबन 3 किलोमीटर दूर से नजर आ रहे थे। ताहम मुश्तरका कोशिशों की वजह से अगरचे आग पर काबू पा लिया गया और इसको रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ने से रोका गया। ताहम इस भयानक आग की वजह से छतलम झील में आए हजारों आदि परिंदों में से सैकड़ों परिंदे भाग गए हैं। ताहम बेशतर मेहमान परिंदे अभी भी जेल में ही बसेरा डाले हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ज़फ़रान की वजह से जहां पामपोर का ये हसीन इलाका पहले ही मशहूर है, वहीं इस इलाके में 4 वेटलैंड छतलम, शिशकोरी, मिनीबुक और क्रिसू वेटलैंड मौजूद है, जहां हर साल सर्दियों के अयाम में यूरोप और एशिया के ममालिक से हजारों मेहमान परिंदे डेरा डालकर खूबसूरत नजारा पेश करते हैं, जिस दौरान मुकामी और गैर मुकामी सयाहों की बड़ी तादाद भी इन आबी पनागाहों की सैर करके वहां खूबसूरत तस्वीर कैमरे में कैद कर लेते हैं। मुकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया कि छतलम झील पामपोर को अगरचे महकमे वाइल्ड लाइफ ने अपने कब्जे में ले लिया है, ताहम यहाँ बुनियादी सतह पर इस पनागाह को बेहतर बनाने की कोशिशें अब तक नहीं नजर आ रही हैं। अलबत्ता साल में 1-2 बार महकमा फोटोशूट करके अपनी जिम्मेदारियों से पलो झाड़ रहा है। मुकामी लोगों ने बताया कि पामपोर इलाके में मौजूद सभी वेटलैंड्स की बेहतरी के लिए इकदाम किए जाए। उन्होंने इस ज़मन में जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा से पूरी मुदाखलत की अपील तलब की है। ये थे पामपोर से शबीर भट्ट। गोपाबल कुजर के सार्फिन ने एक बार फिर शिकायत की कि उन्हें गुज़श्ता 10 रोज से पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना है। मुतासरा लोगों के मुताबिक पानी न मिलने की बुनियादी वजह नारी खारा गोप्पल स्कीम है, जहां से उन्हें मुनासिब पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्कीम नारी खारा के सार्फिन की जरूरियात पूरा करने के अहल ही है। गोपाल के बाशिंदों के मुताबिक गुज़श्ता 1.5 साल से वो पानी सप्लाई को लेकर काफी परेशान है और कई बार महकमा जल शक्ति के अफसरान से गुजारिश कर चुके हैं कि आवा लावा स्कीम से जोड़ा जाए ताकि पानी की सप्लाई में बेहतरी रोनमा हो सके, मगर महकमे के अफसरान इस मामले को लेकर गैर संजीदा हैं, जबकि गोपाल कुजर के लोग पीने के पानी को लेकर काफी परेशान हैं। मुतासर लोगों ने जल शक्ति महकमे के चीफ इंजीनियर से अपील की है कि इस मामले में जरूरी मुदाखलत की जाए। समीर पीडीपी लीडर मंजूर अहमद वानी के वालिद गुज़श्ता दिन इंतकाल कर गए। उनकी वफात पर पीडीपी क़यादत ने गहरे रंज का इज़हार करते हुए सगोवरान बिलखुसूस मंजूर अहमद वानी से ताज़ियत की। इस दौरान पीडीपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर गुलाम नबी लोन हाजुरा ने आज यारी खान साहब में वाक़ा मंजूर अहमद वानी की रिहाइशगाह पर जाकर सगोवरान से दिली ताज़ियत की। उनके हमरा पीडीपी के कई कारकुनान भी थे। समीर कुपवाड़ा के सरहदी इलाका मत्सिल में इस साल वादी के दीगर पहाड़ी इलाकों के मुकाबले में कुछ ज्यादा बर्फबारी हुई और इस वजह से अंदरूनी सड़कें बंद पड़ी हैं। गुज़श्ता दिनों
दपल से मिस्री बहक तक जाने वाली सड़क पर मकामी लोगों को आज खुद बर्फ साफ करने का काम अंजाम देना पड़ा, क्योंकि मुतल्लिका महकमे की तरफ से 10 दिनों तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी। इधर चूंठवारी बाला मसल के लोगों ने भी अलामती एहतजाज के दौर सड़क पर आज खुद बर्फ हटाने का काम शुरू किया। मकामी लोगों का इल्जाम है कि महकमा RNB की तरफ से उन्हें बताया जा रहा है कि टेंडरिंग का अमल जारी है। गुजारिश करा कि हसा गो आज रेत गो रोड यल गसान करा कैसर सबस तो सोन MLA तमस तो गुजारिश करा DC मैम तो गुजारिश ये करा कि आज गो रेत बराबर वन 6 आंच शीन पेम रोड रोजन यल कि रेत गो वन शीन 6 आंच पेम और 6 आंच शीन पे गई रेत आज बंद, यानी कि पे 4 किलोमीटर खालन कह चीज कोपाड़ पे चूंट पानी पे बाल रोड रोजन यल वन 6 आंच शीन पे ये अलाव पे शीन फरवरी मार्चस मज कम से कम पे शीनस 5 फुट 6 फुट तम साधन क्या करो बीमार वनस सह कम से कम 7 वोट और सह वनस वालन या वालन डान ना गुड़िस पे सह दड़ा वत में अगर वन सोन रोड क्या यल ग टेंडर मगर वन अगर वनो तुम दपा यह टेंडर ग ओपन टेंडर कर मगर मेहरबानी कर कैसर सबस गुजारिश कर कि सोन रोड गोस यल ग कम से कम वनस तो वो कि सारे जायन रोड यल यह वही सह इलाक चूंटवाड़ी बाला यथ मज रोड यल कह सन गुजारिश गोत वात कि गाड़ खसन हूर सहूलियत अम सैंकस गाँव मज बीमार सैनिस रोडस न बिल्कुल कह प्रसनी कह गौर कर ओकुन वनकस यीत्या बुजुर्ग वनकस पान शीन चढ़ान यह सड़क कर यह सड़क बिल्कुल यल गाड़ खसन हूर वात हूर। चूंठवारी बाला मसल के लोगों ने बर्फ उठाकर अपना एहतजाज किया दर्ज। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ। चाहते हैं अपने मेज़बान और शेरबीन के आज के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जिंदगी के मुश्किल मोड़ पर कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर की क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस हमेशा आपके लिए दस्तयाब। वादी के हर कोने में हर जरूरत में पाइए क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस सिर्फ 25 रुपए हर किलोमीटर पर। श्रीनगर एयरपोर्ट तक सिर्फ 40 रुपए हर किलोमीटर पर। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर। कॉल 6006 095505। दीदी कैसे हैं आप? और अपनी गुड़िया तो कॉलेज जाने लगी है। क्या आपने इसका नाम पंचायत इलेक्टोरल रोल में दर्ज किया है? नहीं, वो तो नहीं किया। और पंचायत रोल में दर्ज मेरे नाम में भी गलती है। अरे आप चिंता बिल्कुल ना करें। अगर गुड़िया की उम्र 18 साल हो चुकी है या 1 जनवरी 2025 से पहले या तब तक हो जाएगी तो गुड़िया का नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर आराम से हो जाएगा। साथ ही पंचायत इलेक्टोरल रोल में दर्ज नाम या अन्य जानकारी में कोई बदलाव करवाना हो या अपने वोट को दूसरे हलके में शिफ्ट करवाना हो या डिलीट करवाना हो, वो भी हो जाएगा। मगर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अपने पंचायत हलका के ग्राम सेवक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास निशुल्क फॉर्म्स अवेलेबल हैं या आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secjk.nic.in से भी ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2024 है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने हर पंचायत में सभी बूथ लोकेशन पर स्पेशल कैंप्स का आयोजन किया है, जिनकी तारीख है 14 और 15 दिसंबर 2024, जिसमें पंचायत इलेक्शन बूथ के सभी कर्मचारी जैसे कि VLW, MPW, GRS और इनके साथ साथ असेंबली BLO भी बूथ लोकेशन पर वोटर्स की सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secjk.nic.in पर विजिट